evening, madam. Hello. Good evening, madam. Hello, good evening, ma'am. Good evening, Ankushi. Good evening, Lakshmi ma'am. Where is Neha ji? Ma'am, he messaged in the group that today she is not available. She is not available. Okay, fine, not an issue. In that case, what are we planning to do? You both people, you have two options. Either we can do some speaking, or you guys make clear your doubts. When you are only two people, Neha ji is absent, so you guys may ask your doubts. I will not start any new stuff with you. So yeah, that's your choice. You want to clear the doubts from previous classes, or you want to do speaking. What do you want? Neha ji, Lakshmi ma'am. Yeah, madam. Model is repeat. I repeat the model verbs. Yeah, madam. And Hmm. and speaking. And speaking. Yeah. Okay. And Ankushi, what is your point of view? What should we do? What should we do, Ankushi? Hello. Yes, Ankushi. Once again, I'm checking my mic. Sure. No problem. Yes, ma'am. What are you saying? I'm asking, what is your planning? What shall we do? I mean, Neha ji is speaking to repeat the model verbs once again. And now, Yes, yeah, ma'am. Repeat like model verbs or any topic, previous topic. any Previous. previous talk. Okay, fine. No worry. So let's do the same. Let me repeat the model verbs. Okay. Now, here we go. Model verbs. It is a very fresh topic for Ankushi, but Lakshmi ma'am has already done it. So I will not waste much of the time on details. I will keep it very short and fast, right? Ankushi, you guys may ask me the question Yes, meanwhile. ma'am. There is no problem. So first of all, what is model verb? Make one thing sure, guys. When you are using model verbs, you are actually speaking about your feelings, about your attitude, about your emotions, about your, about your uh, body language, or you can say. So whenever you guys want to express your attitude, now what is attitude? Attitude about request. Attitude related to command. Attitude for permission, or maybe attitude for threat. Attitude to show your proposals. Attitude to show your imagination. So whenever you guys are speaking something with attitude, speaking something with feeling or emotions, it is all your model verbs. Now make one thing sure, Lakshmi ma'am and Ankushi, you have to use only first form of verb in your model verb. हमने 5 फॉर्म्स ऑफ वर्ब करी हैं, लेकिन मॉडल वर्ब केवल फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब के साथ खुश रहते हैं. सो जितने भी मॉडल वर्ब्स आप करते हैं, you should use only first form of verb. That's it. Nothing much. You can make negative also, no problem. For making negative, after modal verb, put not. Then first form and object. Right? Right. You can make question, Ankushi and Neha, Lakshmi ma'am. For making question, हमारे पास दो तरीके हैं. पहला तरीका, आप सिर्फ हाँ या ना का क्वेश्चन पूछ रहे हो. जैसे, क्या तुम वजन उठा सकते हो? क्या तुम मेरे पास आ सकते हो? सो इस टाइप के क्वेश्चन में सामने वाला सिर्फ हाँ या ना में रिप्लाई करेगा. आप क्या करेंगे? मॉडल वर्ब्स उठा के आगे करो, जो भी मॉडल वर्ब, एंड देन उसमें लगाओ सब्जेक्ट. वर्ब सेम रहेगी, डोंट चेंज इट. Question. That's it. Now, if you want to make a proper question से मेरा मतलब जब आपको रिप्लाई मिले. फॉर एग्जाम्पल, तुम क्या कर सकते हो?
अब जो क्वेश्चन मिला वो हाँ या ना के साथ पूरा नहीं हो सकता, हाँ या ना से ज्यादा आपको रिप्लाई करना पड़ेगा. नाउ इन WH दिस केस आपको मॉडल सॉरी इन दिस केस आपको WH फैमिली लगानी पड़ेगी मॉडल वर्ब के साथ. नाउ मेक वन थिंग श्योर, कीप दीज स्ट्रक्चर इन योर माइंड. ये स्ट्रक्चर्स दिमाग में रख लीजिए. यही चारों स्ट्रक्चर्स हैं जो आपके पूरे के पूरे मॉडल वर्ब्स में चलेंगे. नाउ टोटल मॉडल वर्ब्स होते कितने हैं? टोटल वी हैव 17 मॉडल वर्ब्स. टोटल वी हैव 17 मॉडल वर्ब्स, right? So Right. make, yeah, we have total 17 model verbs. अब ये 17 model verbs, Hello. yes dear, I missed last two lines because of network issue. no problem. First one is for simple. Second one is when we are using not. And third and fourth, like in modal verb plus subject for V1 plus object. When we are use this, We The- use this when we want only yes or no, Ankushi. When you Okay. want only yes or no. For example, can you come with me? Ankushi, yes, can ma'am. you join the class? Yes, ma'am. Yes. Okay. Can you make tea for me? Yes, Yes. ma'am. Okay. Will you celebrate Rakhi? Yes, ma'am. Okay. Can you kill someone? No, No. ma'am. Yeah. So what are you doing, guys? You are just replying yes or no. This is the first question. But if you have to give a proper answer, for example, what can you do after getting money? What can you do after getting money or becoming rich? So how will you speak now? What How- can you do? But I can give money to my parents. Okay, wonderful. Next, give me some more answers. No. I can help the people. Wonderful, dear. I can start a business. I can start my own business. Awesome. Wonderful. So, yes, Ankushi, you are absolutely right. तो अब मैंने क्या लगाया? मैंने WH फैमिली लगाया. So, ऐसा नहीं है आप केवल what लगा सकते हो, आप कोई सी भी WH फैमिली यूज कर सकते हो. Any WH family that you like, no problem. Now, before I move on, can I ask you, do you know everything about WH family? Do Ma'am, you know can that? you slide show previous slide? I'm taking the screenshot. Sure. Done, ma'am. Done, ma'am. Okay, dear. Now, let's move to WH family. Now, do you have all the information on WH family? You are all set. आपको WH family अच्छे से पता है, guys? Yes. Ankushi? Yes, ma'am. Yeah. Make one thing sure. WH family का मतलब केवल what नहीं होता. WH family बहुत सारी है. How, where, when, why, which. बहुत सारी WH family है. आप इन सारी की सारी WH family को अपने model verbs में use कर सकते हैं. Now let's go to first model verb, that is can. Can का meaning होता है सकता हूँ, सकते हैं, सकती हूँ. पर मुझे translations बिल्कुल पसंद नहीं. And for speaking, translation is the barrier. Means आपकी रुकावट है. आपके लिए सबसे बड़ा रोड़ा है translation. So don't do translation. Can is used for your ability. जब भी आप किसी चीज को लेकर कॉन्फिडेंट हैं, किसी भी काम को लेकर अगर आप कॉन्फिडेंट हैं अंकुशी, आप हमेशा कैन वाले सेंटेंस का यूज करेंगे. कोई टेंस यूज नहीं होगा यहाँ पे. यू विल स्पीक, या आई कैन डू दिस, आई कैन राइड द बुलेट, आई कैन फ्लाई एरोप्लेन, नो प्रॉब्लम, आई कैन बीट एनीवन, आई हैव नो इशू, आई कैन स्टार्ट एनी बिजनेस. सो जो भी चीज जिसको लेकर आप कॉन्फिडेंट हैं, आपको पता है ये काम आप कर ही कर सकते हैं,
तब आप कैन का यूज करते हैं। तो एबिलिटी और कैपेसिटी, आपके अंदर जिस काम को करने की ताकत है। एबिलिटी यानी जिसको लेकर कॉन्फिडेंट है कि आप कर सकते हैं, जैसे आपके अंदर कॉन्फिडेंस है कि आप पब्लिक में गा सकते हैं, सो आई कैन सिंग, नो प्रॉब्लम। आपका डांस बहुत अच्छा है, आई कैन डांस। ठीक है, आपकी मैथ्स बहुत स्ट्रांग है, आप एनी क्वेश्चन यू कैन सॉल्व, ट्रिग्नोमेट्री, मेंसुरेशन, ओके, सो कोई भी सेट्स वगैरह कुछ भी जितने भी टॉपिक हैं मैथ्स में, सो यू कैन से आई कैन सॉल्व मैथ सम्स इजीली। बड़ा सिंपल सा है, आई कैन सॉल्व मैथ सम्स इजीली। कैपेसिटी, आप में ताकत। अगर आप बहुत ही ऑल्दो अंकुश जी, आई हैवंट सीन यू, मैंने नहीं देखा आप कैसे दिखते हैं, बट अगर आप बहुत स्ट्रांग हैं, आई कैन लिफ्ट 50 kg, मैं 50 किलो वजन बड़े आसानी से उठा सकती हूँ। तो ये क्या है, आपका कॉन्फिडेंस प्लस आपके शरीर की ताकत। मेरे जैसा बंदा जिसका वजन ही नहीं है 50 किलो खुद का, वो क्या ही 50 किलो उठाएगा, राइट? सो दैट इज द थिंग कि जिस काम को लेकर आप कॉन्फिडेंट हैं प्लस जिस काम को करने की आप में ताकत है, आप उनके लिए कैन का यूज करते हैं। हाँ, आप नेगेटिव भी बना सकते हो, जैसे मैं अपने लिए बोलूं, आई कैन नॉट लिफ्ट 50 kg, आई कैन लिफ्ट ओनली 10 kg। ठीक है, सो दैट इज नेगेटिव भी बना दो। अगर कॉन्फिडेंस नहीं है, ताकत नहीं है, कैन नॉट बोल दो आई कांट जंप फ्रॉम फर्स्ट फ्लोर, मैं नहीं कूद सकता यहाँ से, मैं कॉन्फिडेंट हूँ कि भाई नहीं कूद सकता, तो आप नेगेटिव भी हो सकते हो, विच इज ओके। अच्छा, नेक्स्ट आता है डियर पॉसिबिलिटी, किस काम के होने के चांसेस काफी ज्यादा है। मेक वन थिंग श्योर, चांसेस काफी ज्यादा हैं। जैसे आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, आपकी कंपनी आपसे बहुत खुश है, सो दे कैन प्रमोट यू, चांसेस काफी ज्यादा है। चांसेस बहुत स्ट्रांग होते हैं कैन वाले केस में, सो दे कैन प्रमोट यू, they can give you increment in your salary. My company can send me in America. So chances काफी ज्यादा हैं, काफी इस बारे में बातें हो रही कि आपकी कंपनी आपको अमेरिका या किसी फॉरेन कंट्री भेज सकती है। सो जब भी आप किसी भी ऐसी चीज की बात करते हैं जिसमें चांसेस काफी अच्छे हैं, तब भी आप कैन का यूज करोगे। नेक्स्ट कैन का कहाँ यूज होता है गाइस, रिक्वेस्ट। आप देखो, अभी तक आपने पॉजिटिव नेगेटिव बनाए, ठीक है, आपने कहा आई कैन गो टू अमेरिका, ये आपने बोला एक पॉसिबिलिटी। ओके, आई कैन गो टू अमेरिका। नेक्स्ट आपने बोला, नेक्स्ट आपने बोला अपनी मम्मा के बारे में, सब्जेक्ट कोई सा भी ले लो, माई मॉम कैन कुक डिलीशियस फूड, मेरी मम्मा बहुत टेस्टी खाना बना सकती हैं। तो ये उनकी एबिलिटी है, ये उनको कॉन्फिडेंस है कि भाई, और आपको भी कॉन्फिडेंस है कि मेरी मम्मा तो बहुत टेस्टी खाना बनाती है। ठीक है, सिमिलरली आप नेगेटिव भी बना सकते हो, जैसे माय ब्रदर, आपके ब्रदर या सिस्टर का ले लेते हैं, माय सिस्टर कैंट जॉइन जिम, मेरी बहन जिम ज्वाइन नहीं कर सकती, मे बी उनके पास टाइम नहीं है, या फिर वो बिजी बहुत है, या छोटी है, नहीं ज्वाइन कर सकती है। सो ये हो गई आपकी फिर से कैपेसिटी, नहीं ज्वाइन कर सकती, बात खत्म। अब इसके बाद नेक्स्ट, ये तो थे नेगेटिव और पॉजिटिव। नेक्स्ट आता है डियर आपका रिक्वेस्ट। ये जो रिक्वेस्ट होती है ना, ये हमेशा क्वेश्चन बनाएगी, ठीक है, रिक्वेस्ट हमेशा क्वेश्चन बनाएंगी, रिप्लाई आपको यस और नो में मिल जाएगा। क्वेश्चन कैसे बनेगा, कैन यू कम विद मी, सो आप रिक्वेस्ट कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कैन यू कम विद मी, कैन यू ज्वाइन मी, कैन यू ड्रॉप मी माई होम। तो जब आप रिक्वेस्ट करते हो तब आप क्वेश्चन बनाते हो, और क्वेश्चन कुछ इस तरीके से बनता है। इवन गाइस, अगर आप अपने छोटों से, मेक वन थिंग श्योर, अपने छोटों से, अपने दोस्तों से, या जिनके साथ आप बहुत ही मजाक मस्ती कर लेते हो, फ्रैंक हो, इनफॉर्मल परमिशन, इनफॉर्मल का मतलब होता है जिनके साथ आप फ्रैंक हो, फॉर्मेलिटी नहीं करते हो, परमिशन लेने के लिए भी इसका यूज हो जाता है डियर। फॉर एग्जाम्पल, कैन आई कम इन, दिस इज ओके, कैन आई टेक योर फोन, कैन आई मेक अ कॉल विद योर फोन,
कैन आई सी योर मैसेजेस? तो ये सारी की सारी जो परमिशंस आप ले रहे हो वो सब कुछ कैन से होती है. इज इट क्लियर अंकुश जी एंड लक्ष्मी मैम? एनी डाउट? Yes, ma'am. Yes, Got ma'am. it, ma'am. इजी समझ आ गया? Yes. हाँ. तो Yes. गाइस मेक वन थिंग शॉर्ट. आप टेंसेस जब बोल रहे होते हैं तब भी इनका यूज करो, कोई समस्या नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है. और इवन जब आप एक सिंगल सेंटेंस बोलते हो ना, अब जैसे मैंने कहा गाइस टुमारो इज राखी, सो डू यू वांट टू ज्वाइन क्लास? मैंने आपसे टेंस से पूछा डू यू वांट टू ज्वाइन क्लास, आप मॉडल वर्ब से रिप्लाई कर सकते हो, कोई Yes. इशू नहीं. I can कैसे join the रिप्लाई करें? class. हाँ. Yes, I can join अंकुश the जी, class. अंकुश जी यू ऑल्सो रिप्लाई डू यू वांट टू ज्वाइन द क्लास? Yes, ma'am. I can join. Okay, that's wonderful. Even you can speak, no ma'am, I can't join in, I am busy tomorrow. So yes, आपको कोई अगर टेंसेस में क्वेश्चन पूछता है आप मॉडल वर्ब से रिप्लाई करो, मॉडल वर्ब से पूछता है टेंसेस में रिप्लाई कर सकते हो, और दोनों को मिक्स करके भी एक प्यारी सी प्रेजेंटेशन बना सकते हो क्योंकि सब स्पीकिंग का ही पार्ट है. सो या दैट्स वंडरफुल. नाउ लेट्स मूव टू नेक्स्ट. ये हमारा कैन हो गया. कोई डाउट लक्ष्मी जी और अंकुश जी इसमें? No, ma'am. No, ma'am. अंकुश, वंडरफुल. नाउ लेट्स मूव टू नेक्स्ट मे. मैंने जानबूझ के कुड नहीं दिया है, मैं बाद में लूंगी कुड क्योंकि फिर आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाएंगे. तो मे पे आना, मे का कंफ्यूज होता है. अभी अभी मैंने आपको बताया जिस काम के चांसेस बहुत ज्यादा है, पॉसिबिलिटी काफी ज्यादा है, तब तो आपने यूज किया था कैन. चलिए यहाँ पर मैं इसे परसेंटेज में डाल देती हूँ. अगर ये जो चांसेस हैं ये 70 to 80% है, 70 to 80% है, मतलब काफी हाई चांसेस है, तो आप खुल के कैन का यूज करिए. ठीक है. पर अगर ये चांसेस कैन से कम हो जाएं तो गाइस आप लोग जंप करके मे पे आ जाओ. अब आप कभी ये कंफ्यूज मत होना ज्योति मैम पता कैसे चलेगा कैन कैसे आ रहा है, मे कैसे आ रहा है, और ये कैसे कंफर्म होगा कि लक्ष्मी मैम सही बोल रही है या अंकुश जी सही बोल रहे हैं. गाइस एक ही सेंटेंस के लिए आप लोग कैन भी यूज कर सकते हो, मे भी यूज कर सकते हो. फॉर एग्जाम्पल लक्ष्मी मैम कैन से मैम आई मे ज्वाइन द क्लास टुमारो, और अंकुश जी कैन से आई कैन ज्वाइन द क्लास टुमारो. आप दोनों में से कौन सही है? Both of आई, you. बोथ ऑफ अस. Both of us. Yeah. यस अंकुश जी कौन सही है? I can join the class, I may join the class. Yes, अंकुशी कौन ठीक है आप दोनों में से? Hello. हेलो. यस अंकुशी. Can you repeat the word, ma'am? या आई एम आस्किंग. नेहा जी ने कहा I may join the class, आपने कहा I can join the class, कौन सा ठीक है? नेहा जी का ही, ओ सॉरी लक्ष्मी मैम का या आपका? If I'm saying I may join, so the possibility is less, वेरी गुड. and I can join the class. The possibility is more, like you said, 70 to 80%. सो ठीक कौन है आप दोनों में से, आप या लक्ष्मी मैम? Ma'am, both are right. Like if he, Absolutely, dear. Absolutely, both of you are right. सर्कमस्टांसेस हैं आपके थोड़े से चांसेस ज्यादा हैं, लक्ष्मी मैम के कम है, या आपके चांसेस कम है लक्ष्मी मैम के ज्यादा है, तो कैन और में उस हिसाब से लग जाता है. यू आर वंडरफुली करेक्ट. सो यस पॉसिबिलिटी जब 50-50 हो यानी कैन से कम है. जब आपकी पॉसिबिलिटी 50-50 है तब आप मे का यूज करते हैं. जैसे मैम आई मे ज्वाइन द क्लास, 50% चांसेस है मैं ज्वाइन कर सकता हूँ, बट 50% चांसेस ना ज्वाइन करने के भी हैं. डोंट फॉरगेट 50% चांसेस है कि मैं अपने देश छोड़ के जा सकता हूँ. आई मे लीव माई कंट्री, चांसेस हैं. सो जिस भी चीज के चांसेस 50-50% होते हैं आप अपने मे का यूज करोगे. राइट. आप नेगेटिव बनाओ, पॉजिटिव बनाओ, कोई भी सब्जेक्ट लगाओ, सब चलेगा. दूसरा गाइस आप इसके अंदर यूज करते हैं, अभी आपने पीछे पढ़ा था इनफॉर्मल परमिशन, अब आ गया फॉर्मल परमिशन. यानी जब भी बॉस से बात करो, सीनियर से बात करो, टीचर से बात करो, या अपने प्रिंसिपल से बात करो, या स्ट्रेंजर से बात करो,
ठीक है, आप हमेशा कैन की जगह मे यूज करोगे। कैन, जैसे हिंदी में समझाती हूँ, ओए अंदर आ जाओ, ये है आपका कैन, क्या मैं अंदर आ सकती हूँ, ये है आपका मे। तो आपका टोन चेंज हो गया। तो मॉडल वर्ब टोन का ही सारा खेल है, आपकी टोन कैसी है, ठीक है। सो एटीट्यूड कैसा। तो अब यहाँ पर आप केवल क्वेश्चन बना सकते थे। मे के साथ आप कोई भी एक सब्जेक्ट लगा दो, आपकी इच्छा है। इसके बाद एज यूजुअल सोचने की जरूरत नहीं है, फर्स्ट फॉर्म क्वेश्चन मार्क ऑब्जेक्ट लगा के। सो मे आई कम इन, मे आई सिट हियर, सर मे आई हैव अ ग्लास ऑफ वाटर। सो ये सारे के सारे इतने फॉर्मली आप बोलते हो कि बहुत तमीज का दायरा रहता है इसमें, बहुत ही तहजीब से बात करते हैं। लास्ट बट नॉट लीस्ट गाइस, मे का यूज होता है आपकी ब्लेसेस के लिए, यानी जब भी आप ब्लेसेस करते हैं, ठीक है, तब भी इसी का यूज होगा। यानी पूरे के पूरे इंग्लिश वर्ल्ड में एक लौता मे है जिसके थ्रू आप ब्लेस कर सकते हो। May God bless you. ऑसम, Safe, वंडरफुल, may safe your journey. बिल्कुल 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 ठीक बोला। अब ये ब्लेस दो तरीके से कर सकते हो गाइस। वो दो तरीके क्या है? पहला तो लक्ष्मी मैम ने ही बता दिया, सबसे पहले मे लगाया, उसके बाद आपने यहाँ पर गॉड कर दिया, ठीक है। गॉड के बाद आपने वर्ब लगाई एंड देन आपने यहाँ पर सब्जेक्ट लगाया। देखो सब्जेक्ट कितना पीछे चला गया, सब्जेक्ट उठा के बिल्कुल ही पीछे फेंक दिया आपने, राइट। एक तो तरीका ये हो गया। अच्छा, इसमें साइन कौन सा आएगा अंकुर जी एंड लक्ष्मी मैम? वैसे स्पीकिंग का पार्ट नहीं होते ये पंक्चुएशन मार्क, पर फिर भी आपकी नॉलेज के लिए मैं आपको सिखाना चाहती हूँ। कौन सा पंक्चुएशन मार्क आएगा यहाँ पे? फुल स्टॉप, क्वेश्चन मार्क, क्या आएगा? Full stop. नहीं sorry. Not full stop, punctuation, like Punctuation है. कौन सी कौन सी कौन सी? uh, there is one line and then dot. दैट्स वंडरफुल। तुम जा रहे हो? यहाँ पे कौन रहेगा? Yes, guys. So you are absolutely right, Ankushi. This is exclamatory sign. इसको exclamatory sign बोलते हैं। Speak up. Exclamatory sign. Exclamatory sign. जी बिल्कुल बिल्कुल। So this is called exclamatory sign. Exclamatory sign. Right? So इसे exclamatory sign बोलते हैं। You are absolutely right, Ankushi. यहाँ पे exclamatory sign आएगा। एक तो मैंने आपको ये सेंटेंस बना दिया जिसमें आपने पहले मे लगाया, फिर गॉड लगाया, फिर वर्ब लगाई और फिर सब्जेक्ट उठा के एंड में फेंका। दूसरा सेंटेंस इसमें क्या बन सकता है? मे के बाद सीधा सब्जेक्ट लगा। तो एक तरीका ये भी हो सकता है, दोनों ही ठीक है। आपको गॉड को मेंशन करना है, गॉड को मेंशन कर दो, वरना सीधा ये कर दो, आएगा दोनों में ही एक्सक्लेमेटरी साइन। जैसे मे यू लिव लॉन्ग, ये है इसका एग्जाम्पल। मे, आपका मे तो अब मे ही रहा, सब्जेक्ट की जगह पर यू आ गया, ठीक है, वर्ब की जगह पे लिव आ गया और ऑब्जेक्ट की जगह पे लॉन्ग आ गया, मे यू लिव लॉन्ग। और अगर ऊपर वाले का एग्जाम्पल दो तो ऊपर वाले में हमने करा था, सबसे पहले मे आ गया, मे, उसके बाद हमने गॉड लगाया, मे गॉड गिव यू, फिर हमने वर्ब लगाई, ठीक है, और वर्ब के बाद हमने सब्जेक्ट लगाया यू। अच्छा, मैं ऑब्जेक्ट लिखना भूल गई, गिव यू लॉन्ग लाइफ। ये थोड़ा सा ओवरलैपिंग हो जाएगा, मैं कहीं और लिख देती हूँ। ओके, सो इसका एग्जाम्पल मैं आपको देती हूँ। सबसे पहले हम यहाँ पर एक काम करते हैं, ऑब्जेक्ट भी ऐड कर ही देते हैं। ऑब्जेक्ट इसमें एंड में आता है और फिर एक्सक्लेमेटरी साइन, वहां से सोच लेना, हटा दिया है। अब यहाँ पर देखो, सबसे पहले मे आ गया, मे गॉड गिव यू बेस्ट
स्पाउस, स्पाउस हस्बैंड और वाइफ को बोलते हैं, दोनों के लिए स्पाउस यूज होता है, जीवन साथी इसकी हिंदी है। सो मे गॉड गिव यू बेस्ट स्पाउस, ठीक है। तो आप गॉड लगाना चाहो गॉड लगाओ, नहीं तो जो नीचे है वो यूज करो, ठीक है। इज इट क्लियर अंकुशी एंड लक्ष्मी मैम? Got it, ma'am. अंकुशी, Yes, ma'am. ओके। अब एक और आपकी फ्रेज है जिसे हम फ्रेज ही कहेंगे, आप लोग क्या करते हो, इसको सबसे ज्यादा गलत तरीके से यूज करते हो, और वो है मे बी। मे बी आप लोग सबसे ज्यादा गलत तरीके से यूज करते हो इसे। गाइस पहले तो ये समझ लो, मे बी का मतलब होता है शायद। जैसे आप हिंदी में केवल शायद बोल के चुप हो जाते हो ना, जैसे अंकुशी मैं आपसे पूछूं, आप फरारी ले रहे हो क्या? Maybe. या दैट्स वंडरफुल, कंप्लीट हो गया। जबरदस्ती इसमें सेंटेंस ऐड करने की कोशिश मत करो यार। हाँ, अगर सेंटेंस ऐड करना है खुल के कर सकते हैं, पर ध्यान रखना इसके बाद टेंसेस यूज करोगे, मॉडल वर्ब का सेंटेंस नहीं आएगा। फॉर एग्जाम्पल मे बी आई कैन कम, ये रॉन्ग है भाई, आपने मे बी लगा दिया और कैन भी लगा दिया, व्हाट द हेल। बट यू कैन से मे बी आई कम, मे बी आई कम टेंस बन गया आपका, या मे बी शी इज कमिंग, मे बी शी इज कमिंग। सो आप इजम आर लगा सकते हो, हैज हैव लगा सकते हो। फॉर एग्जाम्पल मे बी शी हैज लॉट ऑफ मनी, शायद उसके पास बहुत पैसा है, तो मे बी को उठा के सबसे आगे करो, उसके बाद टेंस लगाओ, मॉडल वर्ब नहीं लगा सकते, पहली बात। दूसरी बात, मे बी को अकेला भी बोल सकते हो, जबरदस्ती इसके अंदर सेंटेंस घुसाने की जरूरत नहीं है। और तीसरी बात बहुत इंपॉर्टेंट, मे बी को यार सेंटेंस के बीच में तो बिल्कुल मत। फॉर एग्जाम्पल I may be join the class. This is completely wrong. I may be join the class. ये बिल्कुल गलत सेंटेंस है। You should speak I may join the class. Correct? Yes. Got it. तो हाँ, मे बी को तीन तरीके से यूज कर सकते हो। पहला तरीका, सेंटेंस के सबसे आगे डाल दो और छोड़ दो। दूसरा तरीका, सबसे आगे डालो और इसके बाद टेंस बोलो। तीसरी बात, प्लीज सेंटेंस के बीच में तो इसे किसी कीमत पे नहीं डालेंगे, आप चाहें कुछ भी और करें या ना करें। तो ये चीज आप इस केस में ध्यान रखेंगे। एंड योर मे इज ओवर। एनी डाउट? No. अंकुश जी? No. नो? Yeah. ओके फाइन, लेट्स मूव ऑन विथ योर नेक्स्ट। और आपका अगला सेंटेंस, आई मीन आपका अगला मॉडल वर्ब है थर्ड, दैट इज कुड। अब मैं कुड ले लूंगी जो मैंने पहले नहीं लिया। सो कुड का बेसिकली कहाँ यूज होता है? कुड का सबसे पहले तो एक चीज ध्यान रखना, जो आपने कैन में पढ़ा था ना, आप कॉन्फिडेंट हो, वो कॉन्फिडेंट थे, अब नहीं। जब छोटे थे तो भाग सकते थे, कॉन्फिडेंस था, अब खत्म हो गया, अब शर्म भी आ गई है ये समझ लो, या जो मर्जी कह सकते हैं। किसी भी कारण से कोई भी काम जो आप कर सकते थे अब नहीं कर सकते, तो पास्ट एबिलिटी को शो करता है सबसे पहले तो ये। दूसरा, पास्ट कैपेसिटी को शो करता है, ठीक है। तो कॉन्फिडेंटली आप जो काम पहले कर सकते थे पर अब किसी भी कारण से पॉसिबल नहीं है, आप पहले गिल्ली डंडा खेल सकते थे। व्हाट इज इंग्लिश ऑफ गिल्ली डंडा? I don't What? Huh? know. What is the English of gilli danda, dear? No, ma'am. Ankush ji should know. He's a boy. He should know. But don't know in English, ma'am. Okay. So have you played gilli danda, Ankush ji? Yes, ma'am. Even do you know I have also played in my childhood. So it was a wonderful game, I must say. And Yes, gilli ma'am. danda is called tip cap. It is called tip cap. Right? So what is the English of gilli danda? Tip cat. Yeah, that's wonderful. It's tip cap. Now, what I was telling you, so जो भी चीज आप पास्ट में कर सकते थे, आप खुल के इनके लिए कुड का यूज करेंगे। जैसे अगर मैं अपनी बात करूं, आई कुड बड़ा आसानी से बनता है, तो आप गड़बड़ मत करा करो। आई कुड वियर फ्रॉक,
जब मैं छोटी थी मैं फ्रॉक पहन सकती थी, अब पॉसिबल नहीं है। आई कुड रन फास्ट, मैं तेज दौड़ सकती थी, अब पॉसिबल नहीं है। सो जितनी भी चीजें आप कर सकते थे, इवन नेगेटिव भी बोल सकते हो, जैसे माय मम्मा कुड नॉट, और कुडन कहो आपकी इच्छा, माय मम्मा कुड नॉट वियर सूट, मेरी मम्मा पहले सूट नहीं पहन सकती थी। तो आज की डेट में वो बहुत पहनती है पर पहले नहीं पहन सकती थी, ठीक है। सो दैट इज ऑल पास्ट। एक और चीज जो कि आप कुड यूज कर सकते हो जब आप किसी भी पास्ट पॉसिबिलिटी की बात करते हो। गाइस पास्ट पॉसिबिलिटी में परसेंटेज नहीं हो सकती, आप बस ये बताते हो कि कौन सा काम आप परिस्थितियों के चलते कर सके और कौन सा काम नहीं कर सके। जैसे मैडम आपको कॉल नहीं कर सका, अब नेहा जी जैसे बोले पास्ट के लिए मैं क्लास नहीं ज्वाइन कर सकी, मैं इंग्लिश नहीं बोल सका, मैं आ नहीं सका, मैं जा नहीं सका, ये सारा का सारा पास्ट पॉसिबिलिटी है। फिर से आप नेगेटिव बनाओ, पॉजिटिव बनाओ, कुछ भी बनाओ, चॉइस इज योर्स। फॉर एग्जाम्पल आई कुड नॉट वॉच मूवी, मैं मूवी नहीं देख सका कॉज ऑफ माई एग्जाम, मेरे एग्जाम के कारण। कॉज ऑफ माई एग्जाम बिकॉज का शॉर्ट फॉर्म है, तो आप यस इंग्लिश स्पीकिंग में कॉज ऑफ माई एग्जाम बिल्कुल बोल सकते हो, पूरा बिकॉज बोलने की जरूरत नहीं है। मॉडर्न इंग्लिश में यू कैन स्पीक कॉज ऑफ माई एग्जाम, राइट। सो अपनी एग्जाम के कारण मैं मूवी नहीं देख सका, बट बी केयरफुल, आप ये सारी चीजें उन चीजों के लिए बोल रहे हो जो बीत गई, खत्म, ठीक है। इज इट क्लियर? यू कैन मेक नेगेटिव पॉजिटिव एनीथिंग। इतना कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ आपको? got it ma'am. अंकुश जी कॉन्सेप्ट क्लियर? Yes, ma'am. अब इसमें थोड़ा सा ट्विस्ट है, यहाँ पे थोड़ा मॉडल वर्ब आपको शायद कंफ्यूजिंग लग सकता है, हल्का सा ट्विस्ट है यहाँ पर। मैंने आपसे समझाया पास्ट 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 पास्ट, पर गाइस मॉडल वर्ब थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड भी है। अब बारी है इसी कुड को प्रेजेंट में सीखने की। आई एम चेंजिंग द कलर ऑफ माई पैन सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड इट बेटर। नो सॉरी, ये तो इसी में रहेगा, पास्ट है, लेकिन अब इसके बाद ये प्रेजेंट बन जाएगा। और कब बनेगा प्रेजेंट? जब ये पोलाइट रिक्वेस्ट करेगा। जैसे ही आपका कुड पोलाइट रिक्वेस्ट करता है ये प्रेजेंट बन जाता है, बी केयरफुल, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, कुड आई टॉक टू यू प्लीज, क्या मैं आपसे बात कर सकती हूँ? बहुत हम्बल तरीके से, बहुत पोलाइटली आप बात करते हो, जैसे कुड यू प्लीज या कुड आई टॉक टू मिस्टर सो एंड सो। अब जैसे आपको किसी ने कॉल किया और बहुत पोलाइटली बोला आप प्लीज मेरी उनसे बात करा देंगे, तो इतना पोलाइटली जो आप बोलते हो ना वो कुड से बोलते हो। अब कैन नहीं आता रिक्वेस्ट के लिए। कुड आई ज्वाइन यू प्लीज, यहाँ पे प्लीज भी लगा सकते हो। Could I join you please, क्या मैं आपको ज्वाइन कर सकती हूँ? बहुत स्वीटली बात करते हो आप, कोई सा भी सब्जेक्ट लगाओ, डजेंट मैटर। फॉर एग्जाम्पल, कुड यू प्लीज गिव मी योर फोन नंबर, क्या आप मुझे अपना नंबर दे सकते हैं? तो जब आप इतना स्वीटली बात करते हैं तब कुड का यूज होगा एज प्रेजेंट, अब ये पास्ट नहीं है। नेक्स्ट आपका कुड कहाँ यूज होता है? नेक्स्ट गाइस कुड का यूज होता है जब आप फिर से पॉसिबिलिटी की बात कर रहे हो, पर थोड़ा सा ध्यान से समझना, कैन में जो पॉसिबिलिटी थी काफी ज्यादा थी, मे में पॉसिबिलिटी कम थी, पर कुड में जो पॉसिबिलिटी होती है वो बहुत ही ज्यादा कम होती है, लेकिन आप बहुत पॉजिटिव होते हो। जैसे अंकुश जी मैं आपको एग्जांपल देती हूँ, आपको पता है यूपीएससी का एग्जाम बहुत टफ है, राइट अंकुश जी? Yes, ma'am. या सो यूपीएससी के एग्जाम के लिए ना आपको 24 आवर्स में 25 और 6 आवर्स पढ़ने पड़ते हैं। ये 2 घंटे कहाँ से लाते हैं यूपीएससी के बच्चे, आई डोंट नो, बट बेइंतहा मेहनत करती है। सो जब आप यूपीएससी का एग्जाम के लिए आपके घर का कोई बच्चा पढ़ा, आपका भतीजा भतीजी, आपका भांजा, कोई भी बच्चा आपका घर का पढ़ा है, छोटा भाई बहन,
तो आप यही बोलते हो ही कुड क्लियर द एग्जाम, हो सकता है एग्जाम क्लियर कर दे। चांसेस लो हैं क्योंकि एग्जाम बड़ा टफ है यार, लेकिन आप पॉजिटिव हैं। जब एक कैंसर का पेशेंट मर रहा होता है तब डॉक्टर उसका ऑपरेशन करने के बाद यही बोलता है कि कुड लिव, चांसेस है कि ये जी जाएंगे। और जब वो इस तरीके की स्टेटमेंट दे रहे होते हैं ना तो वो बहुत पॉजिटिव होते हैं। तो जब चांसेस लो हो लेकिन एटीट्यूड पॉजिटिव हो, चांसेस बहुत कम है लेकिन एटीट्यूड टोन पॉजिटिव, तब आप कुड का यूज करते हैं। एक और एग्जांपल देती हूँ। हम लोग सब इलेक्शंस में वोट करते हैं, ठीक है, हमें पता है राहुल गांधी जी थोड़े से मतलब वीक हैं इलेक्शन में, उनके स्टेटमेंट्स उनकी स्पीचेस हम सब हंसते हैं, यही रीजन है उनका नाम पप्पू रखा गया है। पर अगर वो बहुत मेहनत कर रहे हैं और एग्जिट पोल आते हैं, उन एग्जिट पोल को देखने के बाद हम ऐसा अनुमान लगाते हैं कि ही कुड विन, जीत सकते हैं किसी पर्टिकुलर क्षेत्र में, किसी पर्टिकुलर रेड में, एरिया में। सो ही कुड विन यानी चांसेस कम है, उनकी जो इमेज बनी है पप्पू वाली बहुत कम चांसेस है, पर उनकी पार्टी तो पॉजिटिव रही थी ना, वो तो हमेशा उनको पॉजिटिवली ही एटीट्यूड शो करेगी। सो दिस टाइम ही कुड विन द इलेक्शन और राहुल गांधी कुड विन द इलेक्शन। तो जब आपके चांसेस कम है पर टोन पॉजिटिव है तब आप कुड का यूज करते हैं। इज इट क्लियर? इज इट क्लियर गाइस? Got it, ma'am. अंकुशी, कंफ्यूजिंग? Yes, ma'am. Clear. कंफ्यूजिंग? कंफ्यूजिंग? कंफ्यूज है या क्लियर है? Yes, ma'am. Your last word is जो आपने कांग्रेस वाला एग्जाम्पल दिया था वही था. हाँ वही Yes, था। ma'am. Like आप जब possibility हाँ मतलब बहुत कम है, बट हम्म, चांसेस है उस चीज के. नहीं नहीं नहीं, पॉसिबिलिटी बहुत कम है, चांसेस बहुत कम है, पर आपका टोन पॉजिटिव है। टोन पॉजिटिव है, या मैम. हाँ, टोन पॉजिटिव है। जैसे आप आशावादी एटीट्यूड शो कर रहे हैं, यहाँ पर आप थोड़े से सामने वाले को हिम्मत बता रहे थे, जीत जाएगा तू, जीत जाएगा। जो आप हिंदी में करते हो ना, टोन आपकी अलग अलग हो जाती है, इंग्लिश में नहीं हो पाती, वो इस तरीके से होती है। इंग्लिश भी बहुत प्यारी लैंग्वेज है, बहुत इंटरेस्टिंग है, सिर्फ ये आपको डेडिकेशन के साथ सीखना प्रेजेंट है। और फ्यूचर दोनों को दिखाता है ना कोड, इस यहाँ पे जी पॉसिबिलिटी. बिल्कुल बिल्कुल, हाँ 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 हाँ, ये भी हम करते हैं, चलो आपके लिए इजी कर देते हैं। इट शोज फ्यूचर पॉसिबिलिटी, ये आपने बेहतरीन मतलब दिया एक एग्जाम्पल। ये फ्यूचर पॉसिबिलिटीज को शो करता है, यानी जिसका रिजल्ट भविष्य में आएगा। सो यस यू आर राइट डियर, इट शोज फ्यूचर पॉसिबिलिटी कि चांसेस कम है, पर आपको टोन आपका ऐसा है कि आपको लग रहा है ये काम होगा, ऐसा होगा। करेक्ट? Got it, ma'am. नाउ नेक्स्ट लेते हैं गाइस, ये आपका हो गया कुड खत्म। नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट आपका जो है दैट इज माइट। अब माइट का कहाँ यूज होता है, माइट पढ़ लेते हैं। माइट का सिंगल लेने के यूज है, फोर्थ, जल्दी से खत्म हो जाएगा। माइट का लेने के एक यूज है और वो है रिमोट पॉसिबिलिटी डियर, चांसेस भी कम है और टोन भी नेगेटिव है, यानी शायद ही मैं ये काम करूं, मतलब मेरी इच्छा ही नहीं है ये करने की, कभी आ पड़ी बिल्कुल ही मुसीबत आ गई तब मैं ये काम करूंगा। तो कुड और माइट में डिफरेंस समझ लेना, कैन और मे में डिफरेंस समझ लेना। कैन और मे में एक सिंपल सा डिफरेंस है, उनमें एक में चांसेस बहुत ज्यादा है, एक में चांसेस थोड़े से कम है। जबकि कुड और माइट में अंतर ये है कि कुड के केस में चांसेस कम है पर टोन पॉजिटिव है, माइट के केस में चांसेस तो कम है ही है, टोन भी तुम्हारा नेगेटिव है। फॉर एग्जाम्पल, स्मोक करना अच्छी बात नहीं होती है, सो आई माइट स्मोक, मैं शायद ही कभी स्मोक करूँ, ठीक है। आई माइट लीव माई कंट्री, मैं शायद ही कभी अपना देश छोड़ के जाऊँ, यानी ये वो काम है मैं करना भी नहीं चाहती या मैं करना भी नहीं चाहता। बहुत कम, मतलब बहुत ही रेयर ऐसी सिचुएशन होगी, रिमोट को आप रेयर भी बोल सकते हो, नो वरी, आप इसको रेयर भी कह सकते हैं। सो बहुत रेयर वाली सिचुएशन होगी जब मैं अपना देश छोड़कर जाऊंगी या मैं स्मोक करूंगी, I राइट? might drink. सॉरी, I might drink.
I might drink. Awesome. I might drink. Very nice. Very good. क्लास ही लेती रहेगी पूरे दिन तो तैयारी भी करेगी जब आपको देखो क्लास Is it clear with everyone? Clear. Okay, so that's very wonderful to everyone. Now we have done 4 model verbs. Fifth one, एक और आपको सिखा देती हूँ. That is shall. Now, how do we use shall? Guys, basically shall का use सिर्फ एक केस में होता है और वो है I और B के साथ. अब तक मैं आपसे कह रही थी कोई भी सब्जेक्ट लगाओ, कोई भी सब्जेक्ट लगाओ, पर shall के साथ आप नेगेटिव पॉजिटिव नहीं बना सकते, ध्यान रखना. shall के साथ आप ना ही कोई सब्जेक्ट लगा सकते हो, I के और V के अलावा. इसके अलावा कोई सब्जेक्ट नहीं लगाओगे, गड़बड़ मत करना, और ना ही इसके साथ नेगेटिव पॉजिटिव बनाओगे. बस ले देके ये वाला क्वेश्चन बनता है. और यूज कब होता है वो सुन लो. आप अपनी तरफ से किसी को मदद ऑफर करते हो, किसी को हेल्प ऑफर करते हो, वो होता है shall. जैसे shall I bring you a glass of water? कोई आपके सामने खांस रहा है, खांसे जा रहा है. अब उस केस में आप उसको क्या कहोगे? shall I bring you a glass of water? आपको सिंपैथी हो रही है, उसने आपसे पानी लाने नहीं बोला है, आपको खुद ही सिंपैथी शो हो रही है. Shall I help you? Shall I help you? Wonderful. Shall I give you money? Okay, so is it clear with both of you? Yeah, clear. Got it. So now guys, we have done 5 model verbs today. For other model verbs, we'll be meeting on Friday. Tomorrow is Rakhi. So on the occasion of Rakhi, we are announcing a sabbatical. And we will continue this class on Friday. Okay, guys? Okay. Okay, ma'am. Okay, okay dear. What is So your have what is your last word? आपने छुट्टी के लिए क्या यूज किया? Sabbatical? sabbatical. Sabbatical. Sabbaticals. Okay, ma'am. Yeah, right. So yeah, Like it. see you on Tomorrow is- Friday. Happy Yes. Rakhi, ma'am. Tomorrow is Same to you. sabbatical. Yeah, tomorrow is sabbatical. Okay. Okay. Yeah. So happy Rakhi, both of you. Bye bye. Happy Rakhi, ma'am. Bye bye. Happy Rakhi, Lakshmi.